जोहार, मैं संदीप और दूरदर्शन की इस टीवी रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। आज हमारे साथ सूचना प्रसारण एवं संसदीय राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन जी हैं, जो कि झारखंड के 3 दिवसीय दौरे पे आए हुए हैं और आकांक्षी जिला पलामू का वो दौरा करेंगे और आकांक्षी ज़िले में केंद्र सरकार की कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं उनकी समीक्षा भी करेंगे और फील्ड में जाकर वो कार्य का निरीक्षण भी करेंगे। तो आइए हम आपको दिखाते हैं इस टीवी रिपोर्ट के माध्यम से कि एल मुरुगन जी किस तरीके से क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं और योजनाओं की क्या स्थिति है उसका जायजा ले रहे हैं। आइए इस टीवी रिपोर्ट के माध्यम से हम आपको दिखलाते हैं। झारखंड के आकांक्षी जिला पलामू में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने 3 दिवसीय दौरे के दौरान केंद्र सरकार की योजनाओं की प्रगति का जायजा लिया। 23 दिसंबर को अपराह्न 2:40 पर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन रांची के बिरसा मुंडा हवाई अड्डे पहुंचे, जहां दूरदर्शन केंद्र, पीआईबी और पलामू जिला प्रशासन के अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने तमिलनाडु और अन्य राज्यों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। These 7 times they are telling, but they spoiled the entire state. You can take the example, last 3 years, how they have spoiled the Tamil Nadu and Tamil Nadu youths and Tamil Nadu's development. There is no employment and there is no development in Tamil Nadu, and there is only one drug mafia is there. The DMK functionaries, they are smuggling the drugs, and every villages they have TASMAC shops, and where there has to be school, but there is no school. Instead of the school there is TASMAC staff and the medical facilities. Though their entire Tamil Nadu last 3 years there is no development, there is no employment. Only the DMK family, the DMK Stalin's family, they came up, and the dynasty family, his son is Udayanidhi Stalin become a deputy chief minister. The only family has get benefit, but the people are still they are suffering. The poor people, they are still suffering. The Tamil Nadu, they speak about the social justice. There is no social justice. The people are, there is no, they are unable to enter the temples. There is separate cremation centers. What is the 7 times what they did? What achievement they did? They didn't, nothing they didn't. Everything, the family, DMK family, Karunanidhi family, Stalin family only got wealthy, and they are the came to the power. He also says, sir, our alliance will win 200 constituency victory in 2026. It seems that the alliance will be going to break. That's why the fearing of the this alliance is going to break. The Stalin is telling our alliance is strong, that them alliance partner, they are giving daily some controversial statement, and they are criticizing the government. This alliance is going to break at any time. That's why he is come forward and he is telling like this. See, you see how the Uttar Pradesh is growing, how the Gujarat is growing, how the Madhya Pradesh is growing. Instead of the Tamil Nadu is going back under the DMK's governance. The DMK's failure government, there is no law and order situation. Everywhere murder is taking place, and the drugs are everywhere. The drugs are the youngsters, they are taking drugs. They are unable to control. The DMK functionaries, they are smuggling the drugs. They are captured and they are got arrested. So the entire DMK is total failure. Last 3 years, the failure government. The people are going to reject in coming elections. Thank you very much. Today and tomorrow and day after tomorrow, I am going to visit Palamu district under the aspirational district visit program. Our dynamic Prime Minister, Honorable Shri Narendra Modi's guidance, every central minister is visiting, and MOSs are visiting 2 aspiration districts. For me, for the Palamu district is allotted. Last coming 3 days, I am
I am going to visit Palamu, and I am going to visit various activities and various development works I am going to visit, and I am going to take a review meeting with the district officials, and I am going to visit the central government development works taking place, for example Jal Jeevan Mission, Prime Minister Awas Yojana, railway projects, like various projects I am going to visit there, and I am going to have a review meeting with the district administration. सड़क मार्ग से पलामू पहुंचने पर स्थानीय सांसद श्री बीडी राम और जिला प्रशासन के अधिकारियों ने मंत्री महोदय का भव्य स्वागत किया। 24 दिसंबर को समाहरणालय के सभा कक्ष में मंत्री महोदय ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर स्वास्थ्य, शिक्षा, आंगनबाड़ी केंद्रों, पशुपालन, जल जीवन मिशन और कृषि योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। सभी माननीय अतिथिगण हमारे बीच हैं। दीप प्रज्वलित करके हम इस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। यह दीपक ये दिखाता है कि कैसे सुशासन की ज्योति समाज को प्रकाशित करती है। जोरदार तालियों से इसी के साथ हम अपने कार्यक्रम का भी शुभारंभ करेंगे। जो कल्पना करते हैं वो समाज का हम लोग यहाँ पे उसको जमीन उतारते हुए दिखाया जा सके। इसको लेकर के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा भी बहुत सारे पहल किए जाते हैं। हर एक फील्ड में हमें गुड गवर्नेंस की आवश्यकता प्रतीत होती है। लेकिन शासन में जब सुशासन की दृष्टि आए तो सही तरक्की को बढ़ाने वाला पायदान माना जाएगा। जिला प्रशासन ने बहुत सारे विषयों पर नवाचार लाने का कार्य किया है। कुछ जनप्रतिनिधियों ने उन पर चर्चा भी अभी की है। मैं एक विषय पर जरूर उसमें चर्चा करना चाहूँगा। वो बालिका विद्यालय की छात्राओं को नीट और इंजीनियरिंग की परीक्षा के लिए अलग से प्रशिक्षित करने का है। कस्तूरबा गांधी विद्यालय में करीब 150 बालिकाओं का चयन किया गया है नीट एग्जाम की तैयारी कराने के लिए और IIT एग्जाम की तैयारी कराने के लिए। ये विषय आगे चल करके बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है और खास करके न केवल बालिकाओं के लिए बल्कि बालकों के लिए भी एक प्रेरणा का स्रोत बनने वाला है। जब ये बालिकाएं IIT के एग्जाम में और नीट के एग्जाम में सफलता प्राप्त करेंगी तो निश्चित रूप से इनका उदाहरण अनुकरणीय होगा। बिहार में आप सबने नाम सुना होगा आनंद कुमार जी का। उन्होंने हर साल 30 लड़कों का चयन करके उनको IIT का प्रिपरेशन कराने का कार्य किया और बिहार से बहुत सारे छात्र उनके द्वारा पढ़ाए गए प्रशिक्षित छात्र IIT में सफलता हासिल किए। तो इसी प्रकार का ये कार्यक्रम है और झारखंड जैसे राज्य में निश्चित रूप से और खास करके पलामू जैसे जिला में निश्चित रूप से ये कार्यक्रम आगे सफलता हासिल करेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। ये सपनों की उड़ान इसका नाम दिया गया है और नाम भी बहुत समीचीन है। एक और बात जो इस सुशासन के बुकलेट में कही गई है वो पब्लिक ग्रीवेंसेस के लिए पोर्टल तैयार किया गया है, PG पोर्टल। विद्यालयों में ड्रॉप आउट की समस्या पर उन्होंने गहरी चिंता व्यक्त की और इसके समाधान पर चर्चा की।
इसके बाद टाउन हॉल में आयोजित सुशासन दिवस कार्यक्रम में उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की विकास योजनाओं की प्रशंसा की और सुशासन दिवस के महत्व पर भी प्रकाश डाला। आज इस अवसर पर पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए वाजपेयी जी डेथ एनिवर्सरी बर्थ एनिवर्सरी गुड गवर्नेंस डे इज सेलिब्रेटिंग, हमने सेलिब्रेट कर रहे हैं। हमारा अटल बिहारी वाजपेयी जी ड्रीम, एक बड़ा सपना, ये देश के लिए आगे लेके जाने के लिए बहुत काम किया। हमारा अटल बिहारी वाजपेयी जी ने आज हम इतना बड़ा सड़क देख रहे हैं इस देश में, 4 लेन, 6 लेन, 8 लेन, ऐसे एक्सप्रेस हाईवेज, मॉडर्न एक्सप्रेस हाईवेज। इसका ये रोड बनने के लिए एक मूल हमारा पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने वो काम करके हमारे का आगे लेके आने के लिए वो दिखाया। इसी गुड गवर्नेंस वीक हम बन रहे हैं, इस पूरा भी एक सप्ताह, इसी में प्रशासन के लिए अच्छा सुशासन करने के लिए एक कैंपेन, पूरा कैंपेन हमारा प्रशासन में चलाया। कैसे हम जनता के लिए, लोग के लिए मदद करेंगे, कैसे ये गुड गवर्नेंस लेके सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास करके हमारा स्कीम्स, गवर्नमेंट स्कीम्स लास्ट मैन तक हम लेके जाने के लिए इधर सब जनप्रतिनिधि लोग हम बैठ रहे। आज हम गुड गवर्नेंस डे भी हम ऐसे ही हमारा प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने ये 10 साल 2014 से हमारा देश इतना जोर से आगे बढ़ने के लिए हमारा प्रधानमंत्री जी आज काम कर रहे हैं। वो गरीब कल्याण अन्न योजनाएं और घर घर पानी देने के लिए जल जीवन मिशन है, प्रधानमंत्री आवास योजनाएं, आयुष्मान भारत कार्ड है, ऐसे अन्य स्कीम्स है हमारा प्रधानमंत्री जी ने हमारा का लोग का दिया। वो आज एक एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट है, हमारा डिस्ट्रिक्ट पलामू डिस्ट्रिक्ट एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट है। ये एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट 10 साल का पहले कैसा था, आज कितना हम इम्प्रूव करके आगे लेके जाए। जोनल एग्रीकल्चरल रिसर्च सेंटर चिचाकी में मंत्री महोदय ने फलदार पौधों की नर्सरी का निरीक्षण किया और रिसर्च सेंटर के विकास के लिए हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय के दौरे के दौरान उन्होंने सपनों की उड़ान कार्यक्रम में छात्राओं का उत्साहवर्धन किया। इसके साथ ही डॉक्टर एल मुरुगन ने सदर अस्पताल के SNCU वार्ड का दौरा कर नवजात बच्चों के देखभाल की सुविधाओं की जानकारी ली। आगमन सुनकर आए हैं हम, आपका आगमन सुनकर आए हैं हम, स्वागतम स्वागतम स्वागतम, आपका स्वागत
लाए हैं हम स्वागतम 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 आपका। हमारा प्रधानमंत्री जी always tells that the girls has to be empowered and Mahilas to be empowered. ऐसे हमारा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का एक नारा भी है, हमारा देश में आज हमारा महिला शक्ति और तेज से आगे बढ़ रहे, सारा काम में आज हमारा महिला शक्ति आगे बढ़ रहे। हम लोग 6th स्टैंडर्ड से 12th स्टैंडर्ड तक इधर है, घर कई है, घर छोड़ के इधर हॉस्टल में हम पढ़ रहे हैं। हमारा आपका हेडमास्टर है इधर, मेरे को बताया आप लोग छुट्टी भी नहीं लेके, आप छुट्टी में भी घर नहीं जाते, इधर स्टे करके पढ़ने के लिए आप लोग छुट्टी में भी घर नहीं गया, वो बहुत बड़ा बात है। हमारा परेड 26 जनवरी रिपब्लिक डे का परेड हम देखते हैं, कैसे हमारा सिस्टर्स ऐसा इतना गर्व के साथ हमारा एयरफोर्स में ही BSF का तो सारा पैरामिलिट्री से जुड़ के वो परेड लेते हैं, इतना गर्व होता है हमारा का, इतना प्राइड है, हमारा नेशंस प्राइड है। सो वी द स्टूडेंट्स केयर टू पार्टिसिपेट द न्यू ग्रोथ द कंट्री और इंजीनियरिंग की परीक्षा के लिए तैयार किया जाए। और जैसा कि आपको उद्घोषक महोदय ने बताया कि खूंटी में जब वो उपायुक्त के पद पर पदस्थापित थे तो वहाँ इन्होंने इस प्रकार की एक योजना चलाई थी। मैं तो यही चाहूँगा कि ये योजना सफल हो और आप सभी जो इतनी कड़ी मेहनत कर रहे हैं सफलता हासिल करें। और कड़ी मेहनत के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं होता है सफलता हासिल करने का। तो मैं तो आपको आशीर्वाद देने के साथ साथ शुभकामनाएं भी देता हूं कि आप पूरे जी जान से जिस कार्य में लगे हुए हैं पूरे जी जान से उसमें मेहनत करें और छुट्टी वगैरह भूल जाएं। छुट्टी वगैरह तो बाद में जितना चाहिएगा छुट्टी बिताइएगा, अभी पढ़ाई करनी है तो पूरी लगनशीलता के साथ पूरी ईमानदारी के साथ आप पढ़ाई करें और छोटी मोटी कठिनाइयों को भूल जाना चाहिए। कोई कठिनाई भी है पढ़ाई करने के समय तो उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। कुछ खोकर के कुछ पाने में ज़्यादा आनंद आता है। अभी आप कष्ट उठाइएगा तो बाद में आप सुख प्राप्त करिएगा, ऐसा मेरा सोचना है। तो आपको एक बार पुनः शुभकामना देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत 25 दिसंबर को मंत्री महोदय ने दूरदर्शन और आकाशवाणी केंद्र डाल्टनगंज का निरीक्षण किया। इसके अलावे उन्होंने मोहम्मदगंज रेलवे स्टेशन की टनल और सुविधाओं का भी जायजा लिया। डॉक्टर मुरुगन का दौरा पलामू जिले में विकास योजनाओं के प्रभाव को रेखांकित करता है और केंद्र की योजनाओं को जमीनी स्तर पर लागू करने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दिखाता है। पहाड़ों का सिलसिला देख ले, जंगल पहाड़ों का सिलसिला देख ले, रुक 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 परदेसी पलामू जिला देख ले, रुक रुक परदेसी पलामू जिला देख ले, जंगल पहाड़ों का सिलसिला देख ले, जंगल पहाड़ों का सिलसिला देख ले, रुक रुक परदेसी पलामू जिला देख ले, रुक
हमारा नेता, हमारा पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन बन रहा है। इस जन्मदिन हम सूचना हम बना रहे वो गुड गवर्नेंस डे, सुशासन का दिन। हमारा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा किया, हम पूरा देश आज गौरव के बाद हमारा प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री जी श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के हम हमारा समर्पण करेंगे। हमारा पूर्व प्रधानमंत्री जी श्री अटल जी ने इस देश का इतना आगे बढ़ा लेके गया। 98 में हमारा पूर्व प्रधानमंत्री जी ने पूरा दुनिया उनका वार्निंग किया, इकोनॉमिक सैंक्शन करने के लिए उनका वो लोग बोला, फिर भी हमारा पूर्व प्रधानमंत्री जी ने पोखरान में वो एटॉमिक टेस्ट के लिए हम करके दुनिया का दिखाया, हम देश थोड़ा ऐसे हमारा हिंदी थोड़ा ऐसे आएंगे आप लोग थोड़ा अच्छा हिंदी है सर। हमारा पूर्व प्रधानमंत्री जी ने दुनिया का दिखाया, हमारा देश बढ़िया देश है, बड़ा देश है। ऐसे हमारा वाजपेयी जी ने हमारा दिल से आज हम देख रहे बड़ा बड़ा हाईवे देख रहे, 4 लेन, 6 लेन, 8 लेन, 12 लेन, ऐसे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, मॉडर्न एक्सप्रेस हाईवेज। इसका मूल हमारा पूर्व प्रधानमंत्री जी वाजपेयी जी ने गोल्ड 4 लेन्स बना के कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरा रोड बनाने के लिए आज रोड बना है। उस दिन हमारा पूर्व प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया। आज हम देश पूरा हमारा प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने और आगे लेके जाके हम विकसित भारत बनने के लिए 2047 में हमारा भारत देश विकसित भारत, हमारा देश विश्व गुरु बनने के लिए हम सारे लेके आगे जाएंगे। इसमें हमारा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आज सुशासन, गुड गवर्नेंस इतना आगे हम करा, गुड गवर्नेंस लेके सबका हम प्राइम मिनिस्टर आवास योजना घर दे रहे, हम घर घर नल पर जल पहुंचने के लिए काम कर रहे हैं। ऐसे सारा घर का आज टॉयलेट्स पहुंचा दिया हमारा प्रधानमंत्री जी ने। हमारा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हर महिला का चूल्हा गैस कनेक्शन, फ्री गैस कनेक्शन पहुंचा दिया। ऐसे किसान के लिए डायरेक्टली उनका हत्या के लिए किसान सम्मान निधि हम पहुंच रहे। ऐसे गुड गवर्नेंस आज इतना ट्रांसपेरेंसी गवर्नमेंट है। इस 10 साल में आप देख रहे हमारा देश से बढ़ रहा है। हमारा प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गुड गवर्नेंस आज किसी का भी आप देख रहे इतना ट्रांसपेरेंसी है, डिजिटल ऐसे आज ये दूर तक एक फॉरेस्ट में वो विलेज में भी डिजिटल पेमेंट हो रहा है। इतना ट्रांसपेरेंसी है, हमारा सरकार आगे करे, आगे बढ़ रहे। आप लोग हम सब बीजेपी का कार्यकर्ता है। हम इस अवसर पर हमारा पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का आज जन्मदिन पर हम विकसित भारत बनने के लिए पूरा हम समर्पण करके हम काम करेंगे। हमारा देश आगे लेके जाने के लिए हम पूरा कोशिश करके हम पूरा उसमें हम शामिल होंगे।